Good morning, students. My screen is visible, Ritika, Pratibha, Jaya. Yes, beta. Okay. Now see, in the last class, what we have done in a third unit, we just discussed about the challenges on the MOS technology, CMOS scaling, limits to scaling in a nanoscale CMOS. And today we are going to move ahead for the limits of scaling in nano CMOS. Yes, इसका एक research paper है जो मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगी. Then we'll start nanoscale MOSFET. After that, we are going to discuss the CMOS scaling also we have done. I'm just opening each slide just to let you confirm कि ये अपना हो गया है कि नहीं. उसके बाद हम सबसे पहले DG MOSFET करेंगे, FinFET करेंगे and then vertical MOSFET करेंगे. Today we will finish the basic all parts, or might be we will start the DG MOSFET also. See, we started with the changes on the MOS technology and all. Then the silicon technology at limits of scaling. और इसके जो 10 points थे, I discussed in very detail with you. Fine. Then it started the second point, that is a Moore's law. I told you it is a backbone of your particular scaling developed by Jordan Moore in 1965. Why we needed and everything we have been discussed. Then very important part, yes, we discussed this slide in which we discuss about the device scaling. In that, the parameter, scaling parameter and device characteristic we have been discussed. After that, we had sudden observation and then interconnect scaling. Interconnect scaling may be scaling parameters and the characteristic parameter used to be there. After that, one more things we discussed, that is interconnect delays. What are the parameter on which the interconnect delay based and scaling अगर मुझे करना है optimization के लिए तो by what factor we do by 1 by s under root 1 by s. Fine. Then the cost improvement and everything we'll discuss little bit. That's it we have done in last 3 lectures till now. ठीक है. CMOS MOSFETs के बारे में डिस्कस करने के पहले like one paper is there, research paper, nanoscale CMOS. That is going to be there. In that you need not to write anything. I just explain you how many types of there. But yes, of course, where I need to tell you, write down these topics. So you should go for that. Before that, I just want nanoscale scale electronics का एक और summary part में जिस तरह से हम discuss करते हैं. That is, since 1947, transistor continuously shrinking over the years, according to the prediction of Jordan Moore. Jordan Moore told, okay, fine, our application and utility is enhancing, but the size we are trying to shrink over it in each 18 months. So, unfortunately, what is happening, this trend predicted by many to end within the next 10 to 15 years. Like this, it is as the year going and we are developing very advanced and expert devices. So what he decided, he has the interest and everything is going down. What we need to do is to understand the problem and we need to review the popular transistor that is called MOSFET, metal oxide semiconductor. So metal oxide means ठीक है हम स्केलिंग कर रहे हैं पेंटियम 3 4 ये सब कर रहे हैं बट फाइनली सैचुरेशन हर चीज का आता है तो उसी तरह से ये कि MOSFETs are built starting with the substrate that is going to be doped or loaded with impurities given in the substrate. That is a large amount of extra mobile charges. Then we finally thought कि we want a permanent solution. We want a permanent solution and we go for the MOSFETs. MOSFET operation basically, this is going to be like apply gate voltage here. This is SiO2 layer. This is a source. This is a drain.
Red one is indicated by hole and green one is your electrons, and the blue part somewhere, that is the electrons to be transmitted. ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है. स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग. बना रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो बेटा, ये बता दो. ठीक है, ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जस्ट क्योंकि बहुत डिटेल में तो तुम्हें VLSI में ही पढ़ना है इसको, तो ध्यान रहना चाहिए. स्टेप 1 में होता है व्हेन वी अप्लाई द गेट वोल्टेज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन सरफेस इन द चैनल होल्स आर रिपेल्ड. मींस जब गेट वोल्टेज अप्लाई करते हो तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं दैट यूज्ड टू बी रिपेल्ड बाय द होल्स, and then the channel becomes saturated with electrons. Electron in the source are able to flow across the channel to drain like this. तो ब्लू है वो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं. No need to draw it, you can take a screenshot for your knowledge. This thing in a detail we will study in 7th semester, so relax. But you at least you must know कि MOSFET जो होता है मेटल ऑक्साइड, ये तो तुम्हें पता है, ये सोर्स ड्रेन गेट होता है. एनालॉग सर्किट्स में तुमने 4th सेम में पढ़ा होगा, सॉरी 3rd सेम में ही आ गया होगा. बट हाउ द थिंग्स मूव दैट इज गोइंग टू बी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की नैनो स्केल में MOSFET प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके कोमल. I unlock. Fine. शुभम तो आया नहीं, अनलॉक तो हो गया. चलो नेक्स्ट, द प्रेजेंट फैब्रिकेशन प्रॉब्लम्स में जो इश्यूज आते हैं दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट पैटर्न जो प्रोजेक्ट होते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, दैट इज गोइंग टू बी सिलिकॉन वेफर यूजिंग यूवी लाइट्स. द सीरीज ऑफ lenses that which reduce the pattern to some given required solutions like that. एंड नैनो स्केल डिवाइस की जहां तक मैं बात करती हूँ तो काफी फीचर्स जो रहते हैं दैट इज टिपिकल नैनो स्केल डिवाइसेस दैट आर टू स्मॉल टू बी मेड लाइक प्रेजेंट. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स है, स्केलिंग फैक्टर्स है. और फिर कुछ कुछ सॉल्यूशंस है. ये थोड़ा बस मुझे इसमें तुम्हें ये मॉसफेट का डायग्राम ही बताना था, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं. नाउ नैनो स्केल CMOS, दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक. In that also, whatever I will tell you to write down, that only you need to be write down. It is a research paper which I found very fantastic and knowledgeable. After that हम double gate MOSFET को start करेंगे. तो ये जो पेपर है in that CMOS technology from the point of view device physics devices, so particularly इसमें यही बताया है कि पहले की स्केलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, that already been developed. तो CMOS scaling is here. Exponential growth in importance CMOS in the last 3 decades.
For that, MOSFET is very enabled. The design of MOSFET is very progressively dimension that is going to be there, and according to the simple electrostatics, if the dimensions, doping, voltages are scaled, the how the things used to be happen. Means ये मेरी एक device है, original device. In that wiring, voltage and everything is there. And if I scaled it, see how much narrow my wiring is done. Gate and parameters different नहीं हुए हैं. Parameters are exactly the same one. Okay, only just scale down. ये चीज अपन कल कर चुके हैं. यहाँ पर ये अल्फा ले रहे हैं. And we took in our last class S, scaling factor SV2. ठीक है. सो ये जो डायग्राम है ये इलिस्ट्रेट कर रहा है स्केलिंग ऑफ सिलिकॉन टेक्नोलॉजी बाय फैक्टर अल्फा, यू कैन से बाय फैक्टर एस ऑल्सो. तो ये वाला जो है ये ओरिजिनल डिवाइस है और ये वाला जो है ये स्केल्ड डिवाइस. मीन्स कोई भी डिवाइस अगर मैं चेंज करती हूँ तो मेरा इतना ह्यूज जो डिवाइस सर्किटरी है वो कितना स्मॉल और नैरो हो जाता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड. ठीक है. You want to take screenshot, you can take. इसमें क्या बताया है वो जो तुम्हें ध्यान रखना है. जैसे ये यहाँ विड्थ W है तो उसको हमने W बाय अल्फा से कर दिया है. तुम लिखोगे W बाय S. हम स्केलिंग फैक्टर को ऐसे ही लेके चलेंगे अपनी पूरी थ्योरी में. और ये लेंथ जो थी उसको लेंथ को कर दिया है LA अपॉन S. तो दोनों चीजों को 1/S से मैंने नैरो कर. ठीक है ना. तो ये स्केल्ड हो गई, मतलब विड्थ जो इतनी चौड़ी थी वो नैरो हो गई. फिर ये जो थिकनेस है, फिर ये जो थिकनेस है इसको भी T0x अपॉन अल्फा से कर दिया. ठीक है. सो थिकनेस, विड्थ एंड लेंथ, ऑल थ्री थिंग्स वी स्केल डाउन बाय S. सो दिस इज गोइंग टू बी दिस. ये बड़ा होता है तो मैं देखती हूँ एक बार. नहीं, इसका यही साइज है. नहीं तो कर सकते हो, इसको तुम बनाना चाहो तो आई एम गिविंग यू टाइम. ये तुम्हें बेसिकली ये बता रहा है कि इफ माई ओरिजिनल डिवाइस इज दिस विद द वायरिंग, गेट एंड एवरीथिंग, सो इफ आई अप्लाई स्केलिंग, अल्फा की जगह आपको क्या लेना है S. सो LA अपॉन S, T0x अपॉन S एंड W बाय X. हाउ मच सी, इसकी आधी भी नहीं रही है. ओके, इज इट क्लियर? अक्षत, अर्पित, जया, कोमल, प्रांजलि, प्रतिभा, ऋतिका, शुभम. ओके. कुछ बच्चे तो बहुत नए दिख रहे हैं, फॉर दैट आई एम सॉरी. बट प्रतिभा, तुमने, जया, तुम लोगों ने ये लास्ट पढ़ा था तो ये बना लो डिवाइस, या स्क्रीनशॉट ले रहे हो लो, मैं तुम्हें 2 मिनट देती हूँ. कर लिया बेटा? Okay, Pranjali, yes. Now see, after this scaling factor, naturally जो मैं scaling factor apply कर रही हूँ तो डिवाइस में particularly changes आएंगे. Changes means
I need to change my device naturally. So that is going to be there with the device structure and technology. Some historical development used to be there in that. Previously MOSFET is there, then 65 में MOSFET SRAM आ गया, फिर पॉलीसिलिकॉन गेट सेल्फ असाइन, नो नीड टू राइट डाउन. इसके बाद जो एडवांस चीज आई है वो नीचे है, वो अपन लिखी. फिर ये दूसरे काफी सारे चेंजेस इसमें आए. फाइन. आफ्टर दैट फाइनली challenges for CMOS technology. We have already been discussed device technology, gate length and all in a very deep manner, gate oxide thickness and all. ये पेपर हुआ तो मैं तुम्हें भले ही लेटर ऑन आफ्टर कंप्लीटिंग अवर ऑल सिलेबस भेजूंगी. इसमें स्केलिंग को बहुत अच्छे से बताया. एंड माय फर्स्ट स्लाइड विच आई प्रिपेयर्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर पेपर. The main topic in this, see, silicon technology in the limits of scaling. ये मैंने जो डिस्कस नहीं किया था, लॉजिक डिवाइस, partially depleted SOI, this all about here. इसके डिटेल स्ट्रक्चर्स और डायग्राम्स you will get here. Okay. Okay, fine. इसमें डिवाइस डिस्क्रिप्शंस नहीं है. Fine. Now we'll starting with DG MOSFET. Okay, is it fine? So हमारा जो इंटरकनेक्ट इश्यूज डिलेज, इंटरकनेक्ट स्केलिंग, इंटरकनेक्ट डिले, डिवाइस स्केलिंग, all we have completed. Fine. So now let's move with the DG MOSFET. और टाइम मिला तो लिटिल बिट FinFET इंट्रोडक्शन. will go for. ठीक है. Now let's start DG MOSFET, that is double gate MOSFET device. ठीक है. इसमें मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ वो चीज तुम नोट कर लेना, है ना. सिंगल गेट डिवाइस इन अ नैनो स्केल सफरिंग फ्रॉम द शॉर्ट चैनल इफेक्ट that can becomes the various multi-gate structure like double gate, tri-gate and all around structure. So what is my double gate MOSFET? Electrostatic superior to a single gate, and it allows for additional gate length scaling also. DG MOSFETs are the device which are having two gates on either side of the channel. One in upper side, that is known the top gate. Another is on a lower side of the channel, that is called the bottom gate. Means two gates are there, top gate and bottom gate. It gives better control of the channel by the gate electrodes, and this ensure that no part of the channel is far away from a gate electrode. And double gate MOSFET structure minimizes the short channel effect, allows more aggressive devices, downscaling devices up to 10 nanometer gate length. There are two structure modeling. ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक लिख लो. It is important. I know you all are superb and excellent, but then also लिखोगे तो थोड़ा दिमाग में भी आएगा. पहले का कुछ नहीं लिखना है, यहाँ से लिखो कि सिंगल गेट में शॉर्ट चैनल इफेक्ट की प्रॉब्लम होती है तो हम डबल गेट यूज करते हैं. दो गेट होते हैं, एक लोअर साइड में रहता है गेट के, एक अपर साइड में. जो तुम्हारा गेट स्ट्रक्चर मॉसफेट दिखाने का मेरा पर्पज ही यही था कि उसमें तुम टॉप और बॉटम पार्ट देखो, तो एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा. इससे शॉर्ट चैनल इफेक्ट भी होता है और स्केल डाउन होके मेरे डिवाइस ऑप्टिमाइज भी हो जाए. ठीक है.
Do it fast. I'm giving you 3 minutes. Have you done better? Yes. Okay, Nikhil. Fine. So you will come to know, Ritika, that what is double gate MOSFET is mine. Single गेट मॉसफेट मैंने तुम्हें अभी दिखाया था, बेसिक मॉसफेट डिवाइस. इसमें टॉप और बॉटम पे अब इसमें 2 गेट आ जाएंगे. एंड दिस इज अ वे ऑफ स्केलिंग. It is not going to enhance the burden or the size of this. This is a method to make. Means if I have a 2 inputs and I want to give, then instead of using 2 single MOSFET, I can use 1 DG MOSFET and I can apply and process. ठीक है. It allows more aggressive device, down scaling of the device up to 10 nm gate length. ठीक है. ये इसका स्केमेटिक है. बनाना चाहते हो तो बना लो. स्केमेटिक ऑफ डीजी मॉसफेट विद अ प्लेनर स्ट्रक्चर. 2 तरह के इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं. एक तो प्लेनर होते हैं और एक नॉन प्लेनर. नॉन प्लेनर में ये इस तरह से है, प्लेनर में ये बढ़िया. ठीक है. राइट डाउन. 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर. तुम तो प्लेनर वाला भी बना दोगे तो बहुत है. प्लेनर में क्या है, सी दिस इज माई सोर्स, दिस इज माई ड्रेन. इसीलिए आई गेव यू टाइम 2 to 3 minutes for the MOSFET when I was explaining that. Take the screenshot for your further knowledge and information. See, this is my gate used to be there. यहाँ एक bottom gate यहाँ हो जाएगा, top gate यहाँ हो जाएगा. Current direction of the flow of carriers are like this from drain to source, and this is going to my substrate. The advantage of using planar structure is better uniformity of silicon channel thickness, and it can use existing fabrication processes also. Disadvantages are fabrication of back gate and gate electric underneath. The silicon channel is difficult to assessing. Bottom gate for device wiring is not easy. And तुम्हें टाइम चाहिए तो मैं अभी लिखने को दे दूंगी. I will not share material till my syllabus is going to over. तो वैसे भी ये सारा लेक्चर्स मैं शेयर करती हूँ. प्रतिभा वो हो गया है तुम्हारा क्या, ब्रोनी जोन एंड कैनी पॉइंट मॉडल्स? इसमें सिर्फ ये डायग्राम बना लो. फाइन. एंड राइट डाउन only the plus point that by using planar structure in a DC MOSFET,
what we have benefit, that is a better uniformity of silicon channel thickness and use existing fabrication process. और disadvantages क्या है कि फैब्रिकेशन में बैक गेट एंड गेट डाइलेक्ट्रिक अंडरनीथ होता है, तो उससे क्या होता है कि सिलिकॉन चैनल इज डिफिकल्ट एंड असेसिंग बॉटम गेट फॉर द डिवाइस वायरिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. सो हम प्लेनर मतलब एक उस पे करने की बजाय हम नॉन प्लेनर में क्या करते हैं, साथ में ये बना लो, हाथ से बनाओगे तो भी ज्यादा अच्छा है. और फिर ये मेरिट्स डीमेरिट्स में एक मेरिट तो लिख लो कि इसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिलिकॉन चैनल थिकनेस रहती है and it can be existing fabrication process. and disadvantages में back gate और gate dielectric जो underneath रहते हैं, that is very difficult to assess. और नॉन प्लेनर में हम क्या कर रहे हैं अब सी, advantage of non-planar structure is it is easier formation access of both gates, that is wrap around. इसमें हमने क्या करा है, ये हमारा पर्टिकुलरली इस तरह से ले लिया, ये सोर्स हो गया, टू पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर दिया, टॉप गेट बॉटम गेट, और इजियर फॉर्मेशन हो गया, इससे wrap around गेट हो गया, इन increases the device density. Disadvantage ये है कि channel thickness defined by the lithography front and back gates cannot be biased from the conventional fabrication. See, each thing has the plus and minus point. तो इसका भी ये डायग्राम ऐसे बना के, I do agree तुम्हें पूरा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये मैं कोशिश कर रही हूँ तो भी है. साइज बड़ा नहीं हो रहा है इसमें, मैं तुम्हें बता देती हूँ यहाँ से. इसमें इस तरह से ना करके इधर किया, यहाँ टॉप गेट हो गया, यहाँ बॉटम गेट हो गया, सोर्स यहाँ है, ड्रेन यहाँ. लिख लो, इसके पॉइंट्स लिख लो बेटा. प्लीज डू फास्ट.
कंप्लीटेड रितिका, प्रतिभा, ओके जया, ठीक है फाइन। तो अभी तक अपन ने डीजी मॉसफेट में क्या पढ़ा कि दो गेट्स होते हैं, टॉप और बॉटम, और दो तरह के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। प्लेनर इज गोइंग टू बी लाइक दिस एंड नॉन प्लेनर इज गोइंग टू बी लाइक दिस। जनरल ऑपरेशन ऑन डीजी मॉसफेट की अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इस तरह से इसका व्यू रहता है। दैट इज बॉटम गेट, दिस इज अ टॉप गेट, नो नीड टू ड्रॉ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सोर्स एंड, ठीक है। फाइन। डिवाइस डिजाइन की बात अगर स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ डीजी मॉसफेट का बनाना चाहोगे तो ये इस तरह से रहता है, that you need to draw, that sometime could be asked. Draw the schematic structure of DG MOSFET with a gate length of, not with a gate length of 20 nm or what, simply like. So how you will draw, see this is my drain, this is source, ये n type का हो गया, ये npn अपन ने जो बनाया है अभी DG MOSFET वो npn है, ठीक है। ये मेरा p टाइप का सबस्ट्रेट हो गया, या सोर्स n टाइप का हो गया, ड्रेन n टाइप का हो गया, और गेट 1 और ये गेट 2 है। दिस इज माई टॉप गेट, दिस इज माई बॉटम गेट। इसको बना लो। इसमें भी रिसर्च वगैरह का बहुत इजी और अच्छा अप्रोच है प्रोजेक्ट और इसके हिसाब से। सी मेक इट फास्ट, नहीं हुआ तो अगली क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है और 11 बजे से मेरी दूसरी क्लास भी है बेटा, ठीक है। बना तो लो, ये बना लो, उसके बाद इसके कर्व्स वगैरह बताने, डिजाइनर्स ज्यादा नहीं है अब इसमें, वैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बतानी है, वो भी तुम्हारे सिलेबस में डीजी मॉसफेट नहीं लिखा है, बट बिफोर गोइंग फॉर फिनफैट में 3 गेट होते हैं, दैट आई थॉट। और एक पेपर में मैंने डीजी मॉसफेट का क्वेश्चन भी देखा, वो कहते हैं बाय डिफॉल्ट यू आर स्टडिंग नैनो स्केल मॉसफेट, इवन दो वी हैवंट मेंशन इन सिलेबस, बट नैनो स्केल मॉसफेट में तो डीजी मॉसफेट भी आता है बिफोर फिनफैट, तो इसीलिए। बना लिया क्या? जल्दी बनाओ बेटा। ऋतिका, शुभम, मीनवाइल तुम बना रहे हो, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ तुम लोगों की। अक्षत फर्स्ट क्लास, अमीशा यस प्लीज, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अर्पित, जया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोमल, निखिल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. प्रांजलि, प्रतिभा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऋतिका, बना लिया डायग्राम? ठीक है। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स की जहां तक बात आती है, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जैसी वही स्टैंडर्ड है जो मॉसफेट में तुम्हारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आती है ना, आईडी वर्सेस वीडीएस, लाइक दिस वे ना, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक रहती है वो इस तरह से, ठीक है। दैट्स इट। अपने पढ़ने के लिए तो यही था एक्चुअली, एक पेपर कंपैरेटिव स्टडी पे था, सिंगल गेट एंड मॉसफेट पे, इसमें मुझे डीजी मॉसफेट का मटेरियल अच्छा लगा, आई एक्सप्लेन यू। So that's it for this. In the next class, we'll start with the FinFET. What is FinFET? Why FinFET? Evaluation and comparison. ठीक है? Okay, so I will take your class now on Thursday. Friday तो छुट्टी है.
हुआ तो मैं वेडनेसडे भी तुम्हारी क्लास लूंगी क्योंकि फ्राइडे छुट्टी है. विल सी. ओके, तुम्हारे लिए अच्छा. देखो, बीच में मैं गैप देने वाली नहीं हूँ. वैसे ही हार्डली वीक में 3 लेक्चर्स आते हैं, उसमें से भी कई बार 2 ही होते हैं. समटाइम आई टुक एक्स्ट्रा, like as today I'm telling, on Wednesday I could take your class, but I will inform you. My pattern is let you complete your syllabus and free. जून में भले ही तुम कहोगे. और वैसे भी ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें FinFET and vertical MOSFET बचा है. So one lecture for FinFET means this week this unit is going to be finished. Then what else remain is a last unit. Last unit is bit time consuming, तो नहीं elaborative है. Then also I think 5th June या 10 June के आसपास you will complete your syllabus, whether your midterms are there or not. उसके बाद डाउट क्लासेस या इस तरह से हो सकता है अगर तुम्हें नीड रहे तो. बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल नॉट डिस्टर्ब. फाइन. सो मैम आगे एग्जाम कब से हो गया? नो इन्फॉर्मेशन. अभी तो तुम्हारे फर्स्ट मिड टर्म की डेट नहीं आई है ऐसे, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं है. लेकिन मिड टर्म जरूर सुना तो था कि मई में होंगे. 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर के ऑनलाइन ही होंगे. सो लेट्स सी. तुम्हारे मिड टर्म की प्रिपरेशन रखो. और आरयू एग्जाम्स लेट्स सी. अभी तो ये लॉकडाउन जो लगा है उसके बाद देखते हैं. बट यस, तुम लोगों का सिलेबस हो जाएगा इस लॉकडाउन का. सो डोंट ट्राई टू बी गो इन अ रिलैक्स मोड और लाइक एक वीक ब्रेक और दिस. I just suggest you and recommend you to attend class. Classes का तो वैसे भी है, तुम अटेंड करोगे तो वेरी नॉलेजेबल थिंग्स जो तुम्हें नहीं मिलेगी. और तुम्हारा ये जो सब्जेक्ट है इसकी एक स्पेसिफिक बुक नहीं है. बिकॉज व्हाट द सिलेबस राइटर डिड, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में से फिजिक्स पार्ट ले लिया, नैनो टेक्नोलॉजी में से मॉसफेट पार्ट ले लिया. सो अभी सिंगल बुक बनने में भी इसका टाइम लगेगा. तो अटेंड करोगे तो एटलीस्ट यू कम टू नो द कंसेप्ट एंड द थिंग्स. इट्स योर विश. ठीक है. ओके, गॉड ब्लेस यू. सी यू. I will inform you on might be on Wednesday, otherwise Thursday तो मैं लूंगी.